خبر بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا۔ بریلی درپن میں اس وقت ہم موجود ہیں، تاج الشریعہ کا عرس چل رہا ہے متھرا پور میں۔ یہاں پر دو روزہ عرس کا جس طرح سے اہتمام ہو رہا ہے، 26 اور 27 تاریخ کو جو ہے عرس کا اہتمام کی ابتدا جو ہے پرچم کشائی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو منظر ہے یہاں کا دیکھنے کے لائق ہے۔ پورا مانو بریلی ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے لوگ یہاں پر اس وقت پہنچ گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پوری طرح سے پولیس ایڈمنسٹریشن کی بات کریں یا پھر عرس درگاہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کی میں بات کروں، عرس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مہندی حسن کی بات کروں، وہ سبھی اس وقت یہاں پر ہیں۔ جامعۃ الرضا اسلامک سینٹر ہے، یہیں پر ہی عرس کا اہتمام ہونے جا رہا ہے۔ دو روزہ عرس ہوگا، آج بھی قل شریف ہوگا، کل 7:14 پر قل شریف کا اہتمام کیا جائے گا۔ میں اندر بھی آپ کو لے کر چلوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلی ہی نہیں بلکہ ملک بھر سے، بلکہ کہیں جائے کہ غیر ممالک سے بھی بہت سارے زائرین آئے ہوئے ہیں جو حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں۔ 5ویں عرس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ منظر جو ہے یہ صرف انٹری گیٹ کا ہے، اندر کا منظر واقعی دیکھنے کے لائق ہوگا۔ بہت سارے اسکالرس آئے ہوئے ہیں، بہت سارے بزرگان دین آئے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے جو ہے جو یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے اس کو بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ خطاب کر رہے ہیں جو سیدھی آپ تصویریں بریلی درپن پر میں آپ کو دکھا دوں، اندر بھی میں چلوں گا، ساتھ ہی ساتھ میں بات بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو عرس انتظامیہ ہے ان کا موومنٹ تھا، میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ میں بات کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار لوگوں کا آنا جاری ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والوں کا یہ مجمع ہے۔ اور یہاں پر اندر کا بھی منظر میں دکھاؤں گا، بہت ساری کتابوں کے اسٹال سجے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے یہاں پر جو ہے زائرین بھی آئے ہوئے ہیں، الگ الگ جگہ کے زائرین آئے ہوئے ہیں، وہاں بھی میں آپ کو ضرور لے کر چلوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کس کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو مہمان آئے ہوئے ہیں الگ الگ جگہ سے، ان کو بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ یہ تصویریں سیدھے آپ جامعۃ الرضا اسلامک سینٹر سے دیکھ رہے ہیں جو متھرا پور میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے لنگر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو جو بھی لوگ آئے ہیں عرس میں شرکت کرنے کے لیے ان کے لیے لنگر کا یہاں پر معقول انتظام ہے۔ اس طرح سے اور بھی لوگ اپنے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پر عرس میں۔ اس طرح سے اور بھی جیسے کہ شربت کا جو ہے وہ بھی جگہ جگہ پر لوگوں کو ہے شربت پلایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر آپ کو اور بہت ساری چیزیں دیکھیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں جو دیکھ رہے ہیں یہ متھرا پور علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ جامعۃ الرضا اسلامک سینٹر ہے۔ یہاں پر ہر سال پچھلے سال بھی یہاں کا منظر دیکھنے لائق تھا، تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا منظر دیکھنے لائق ہے۔ عرس کی ابتدا ہوئی ہے تو کس طرح سے کثیر تعداد میں یہاں پر زائرین آئے ہوئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا جو ہے حضور تاج الشریعہ کو لے کر کے کس طرح کا لوگوں کتنا مانتے ہیں حضور تاج الشریعہ کو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ملک بھر سے، غیر ممالک سے بھی جو ہے بہت سارے زائرین یہاں تشریف فرما ہیں۔ آئیے سیدھے میں آپ کو کچھ ضرور دکھانا اور بتانا بھی چاہوں گا۔ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں بھی میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ دو روزہ عرس کا جس طرح سے اہتمام کیا جا رہا ہے اس کے مد نظر باقاعدہ جس طرح کے پنڈال سجائے گئے ہیں، تو یہاں پر تقریباً میں آپ کو بتا دوں
इस उर्स का जो है हमने कल कवरेज किया था, जब बहुत सारे अधिकारी आए थे यहाँ के इंतजामात को देखने के लिए। उस वक्त काम चल रहा था और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से पुलिस एहलकार, आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों के ड्यूटी है, उसी तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी हुई है। पंडाल सजा हुआ है, बहुत सारे कारी बुजुर्गान दीन जो है आपको मैं पूरा प्रोग्राम के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर्स भी हैं जो खिदमत दे रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह जो है तबरुकात की दुकानें सजी हुई हैं, पानी की दुकानें हैं यहाँ पर। इसी तरह से रहने के लिए लोगों का जो है इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं लंगर के इंतजाम किए गए हैं, जिसके अलग अलग जो है बैनर भी आप टंगे हुए देख सकते हैं। बहुत सारे ज़ायरीन भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सीधी तस्वीरें आप जो बरेली दर्पण पर इस वक्त का जो मंजर देख पा रहे हैं, जामिअतुर रज़ा इस्लामिक सेंटर जो मथुरापुर में है, वहाँ पर ही जो है उर्स का 2 रोज़ा उर्स का एहतमाम हो रहा है। साथ ही साथ दरगाह पर भी हम गए थे, वहाँ पर परचम कुशाई का एहतमाम हुआ था, उसको भी हमने आपको ज़रूर दिखाया था। उससे पहले जो उर्स कमेटी के जो लोग भी हैं वो उन्होंने भी यहाँ पर लगातार राउंड ले रहे हैं, किस तरह की किसी को कोई परेशानी ना हो। ये भी देखा डॉक्टर मेहंदी हसन भी थे जो उर्स प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं कहा जाए, उर्स कोऑर्डिनेटर हैं, वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हालांकि वक्त इतने बिजी है कि हम उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन हम पूरा उर्स का मंजर आपको दिखा रहे हैं। रात का मंजर यहाँ पर देखने के लायक होगा। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो उर्स ताजुश शरिया का 5वें उर्स का एहतमाम जो किया जा रहा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, खासतौर से ताजुश शरिया के उर्स को लेकर के। कहाँ से आए आप? मुरादाबाद से हैं जी, मुरादाबाद। चलिए आप मुझे बताइए उर्स को लेकर क्या कहेंगे और किस तरह का अकीदा है हुजूर ताजुश शरिया को लेकर के? आप हुजूर ताजुश शरिया इल्मी और रूहानी दोनों शख्सियतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस वली हैं और उनकी वली होने की ज़िंदा मिसाल ये है कि आपके जनाजे में लाखों लोग हाजिर हुए थे और अल्लाह के लाखों करोड़ों लोग हाजिर हुए थे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी उस जनाजे में शामिल था। जी, अच्छा, मैं भी वाकई आया था, दिल्ली से आया था। मुझे ये बताइए, पिछले सालों में उर्स नहीं हुआ, एक मायूसी थी, लेकिन पिछले साल के उर्स के मुकाबले और इस बार जो उर्स हो रहा है उसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ है और पिछले साल न होने की वजह वो आप और सब लोग बखूबी जानते हैं जी कि वो लॉकडाउन का दौर था और गवर्नमेंट का आदेश था उसका पालन करना हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी होता है और इसी वजह से वो प्रोग्राम ना हो पाया था। लेकिन अब लोग जोश व खरोश के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बसलामती इस प्रोग्राम को हमारे कामयाब बनाएगा। आमीन आमीन। कल 7:14 पर जो है कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। क्या कहेंगे हुजूर ताजुश शरिया के बारे में? हुजूर ताजुश शरिया के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि बस उनसे अकीदत और उनके दामन से वाबस्तगी जिसको नसीब हो जाए तो यकीनन दुनिया और आखिरत में उसका बेड़ा पार है।
हुजूर ताजुश शरिया कोई मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों से, सूबों से लोग चलकर यहाँ ज़ायरीन पहुँच चुके हैं और कल शाम 7:14 पर हज़रत का कुल शरीफ होना है। उससे पहले आप देखेंगे कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी कुछ लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। बिलखुसूस हमारे मुंबई, महाराष्ट्र और बिहार, बंगाल से बहुत सारे ज़ायरीन आए हुए हैं। हम सबके लिए दुआ करते हैं कि मौला सबको फैज़ान ताजुश शरिया से माला माल फरमाए। किस तरह के इंतजामात है यहाँ पर, देख कर क्या कहेंगे? इंतजामात बहुत अच्छे हैं और मैं बरेली प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बरेली प्रशासन बहुत एकदम चौकन्ना है और बहुत अच्छे इंतजामात हमारी सुरक्षा के लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो सुरक्षा होती है, क्योंकि बाहर से हमारे मेहमान हजरात तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा और खाने पीने की व्यवस्था ये बहुत ज़रूरी है। और वो हम देख सकते हैं, आप सामने जितने भी ये लंगर खाने नज़र आ रहे हैं, खाने का बहुत शानदार इंतजाम है। शहजादा ताजुश शरिया हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अज़द रज़ा खान क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया दिल खोल कर इंशराह सद्र के साथ इंतजाम फरमाते हैं। हम उनके बेहद मशकूर हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक हजरत को उम्र तवील अता फरमाए। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं वैसे तो मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 4 साल से मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पर ज़ेर तालीम हूँ। माशाल्लाह, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी हुज़ूर ताजुश शरिया के बारे में, दरगाह आला हज़रत? कहना क्या चाहेंगे, माशाल्लाह मुरादाबाद से आना हुआ है उर्स ताजुश शरिया के मौके पर। माशाल्लाह पीर मुर्शिद और तमाम ही ज़ायरीन, लगभग मेरा कहना तो ये है कि सभी हुज़ूर ताजुश शरिया के मुरीदीन हैं माशाल्लाह। और दूर दराज से जो है, दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी अक़ीदतों को ज़ाहिर करते हैं माशाल्लाह। और बहुत बड़े पैमाने पर उर्स हुआ करता है और 5वां उर्स ताजुश शरिया अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। जैसा कि ताजुश शरिया की हम तारीफ़ व सना तो इस वक्त नहीं कर सकते हैं, बस मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि इल्म व अमल के साथ बहुत सारी खूबियों के आप मालिक थे, बहुत सारी खूबियों के आप हामिल थे माशाल्लाह। और बहुत बड़े पैमाने पर उर्स हुआ करता है, तमाम ज़ायरीन आए हुए हैं। और अभी तो स्टार्टिंग है, आज पहला दिन है क्योंकि ये 2 रोज़ा होना है। कल इंशाअल्लाह कुल शरीफ होगा 7:14 पर इंशाअल्लाह। कल भी आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ता हुआ आप देखेंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह। और हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अक़ीदत को ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो स्कॉलर्स हैं, जिनको कारी हैं, कौन कौन लोग आए हुए हैं, थोड़ा बता सकते हैं? जी, इस वक्त अभी देखिए कंफर्म तो नहीं हो पाया कि कौन कौन उलमाए किराम यहाँ आएंगे। वैसे जो मशहूर उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, सबसे पहले तो हुजूर ताजुश शरिया के शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर अज़द मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा होते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है कायदे मिल्लत की जो दामाद हैं हुजूर सलमान मियाँ साहब, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। और भी मुल्क से, बैरून मुल्क से बड़े बड़े उलमा जैसे मुहद्दिस कबीर हुजूर सदरुश शरिया के बेटे और भी बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ़ लाया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आ भी चुके होंगे, लेकिन कल चूँकि बड़े पैमाने पर मजलिस का इनकाद होना है तो उसमें भी शामिल होंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उलमा जो हमारे मदरसे में पढ़ाया करते हैं वो असातिज़ा भी शामिल हैं और भी दूर दराज से उलमा यहाँ पे शामिल हैं। वो खिताब करेंगे वो भी? जी जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग खिताब करेंगे। और अपने मुफ्ती गुलाम ज़िलानी एक अज़हरी हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा बयान करते हैं। तमाम उलमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज से, इंशाल्लाह आप सुनेंगे उन लोगों का करीब। बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए आप? आसाम से। आसाम से आए? ऐसे मैं अभी बिहार से आया हूँ, सिवान जिला से। जी, क्या कहेंगे यहाँ का मंजर देख करके? माशाल्लाह बहुत अच्छा मंजर है जी। बहुत खूब, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं बहुत सारे उलमा इकराम आएंगे जो खिताब करेंगे। और कल का मंजर यहाँ पर देखने के लायक होगा। हालांकि जिस तरह से उलमा खिताब करेंगे उसी तरह से देखा जाए बयान पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको सुनने वाले भी, ज़ायरीन भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, कहा जाए जैसे जैसे रात होती जाएगी, यहाँ का मंजर और भी खूबसूरत होता जाएगा। ये अक्सर हमने देखा है, जिस तरह के प्रोग्राम हैं, रात में भी जो है एक कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है वो रात को, कल शाम को 7:14 पर भी जो है उसका वो कुल शरीफ का एहतमाम होगा, जो हुजूर ताजुश शरिया। जिस तरह से कहा कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें भी हैं जो ख़ास तौर से हुजूर ताजुश शरिया के दरगाह आला हज़रत को लेकर के भी यहाँ पर रखी हुई हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी जगह है, कहीं पर जो है
फ्री में भी बहुत सारी किताबों को जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, ख़ासतौर से दीनी किताबें हैं जिसके बारे में आप बहुत कुछ जान पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी जो है कुछ रखा हुआ है, मैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। जिस तरह से मेहंदी हसन साहब ने कहा था कि बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, इसमें क्या रखा है? किताब जिल्द है, क्या है? चलिए, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। बहरहाल मैं जानने की और भी कोशिश करूंगा कि जिस तरह से ये कहा गया था कि यहाँ पर जो है बहुत सारे काउंटर्स बने हैं जहाँ फ्री में बिल्कुल किताबें मुहैया कराई जा रही हैं, ख़ासतौर से दीनी किताबें हैं यहाँ पर। मुस्लिम उल इस्लाम सीधे और आगे को ज़रूर हम आपको लेकर चलेंगे। जो मंज़र यहाँ का है वो भी वाकई देखने लायक है। मैं लगातार, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर हम जामिअतुर रज़ा इस्लामिक सेंटर में है, ये मथुरापुर में है। यहीं पर ही हर साल जो है उसका एहतमाम किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो तालिबे इल्म तलबा हैं वो तालीम लेते हैं और ये इस इस्लामिक सेंटर को, इस स्टडी सेंटर को जो है खुद जो है हुजूर ताजुश शरिया ने शुरू किया था और उन्हीं की देन है कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में तालिबे इल्म तालीम लेते हैं। बहुत सारे तलबा जो है वो तालीम लेते हैं और तालिबे इल्म बहुत सारे यहाँ से निकल गए हैं जो अलग अलग जगह पर जो है ताजुश शरिया और यहाँ का जो है परचम लहरा रहे हैं। इस इस्लामिक सेंटर का जो है उसका परचम लहरा रहे हैं। इस तरह से देखिए जगह जगह पर जो है पानी का, चाय का, लंगर का एहतमाम किया गया है। अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके खाने पीने का माकूल इंतज़ाम है। इस तरह से हर जगह जगह पर लंगर चाय, शरबत की सबील वगैरह सब लगाई गई हैं। यानी जो लोग भी यहाँ ज़ायरीन आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बाकायदा माकूल इंतज़ाम है। तो इस जगह को बताऊँ, जो जगह है ये जो सेंटर है ये भी पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पर लाइटिंग की गई है, ऐसा मानो दुल्हन की तरह सजा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर पंडाल है तो वहाँ पर भी जो है कसीर तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं जो सुनने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे जो है उलेमा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जो बयान जो है उनके बयान हो रहे हैं, वो खिताब कर रहे हैं। तो ये इस तरह का पूरा रात भर इसी तरह से होता रहेगा और उसके साथ साथ कल दिन में भी मंजर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं ये बात कहूँ कि कल शाम को 7:14 पर हुजूर ताजुश शरिया का जो है वो कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। ये थोड़ा हुजूर ताजुश शरिया की ज़िंदगी पर, उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी भी ज़रूर डाल लेते हैं। बरेली के आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की तीसरी पीढ़ी की अहम शख्सियत, सुन्नी बरेलवियों के ताजदार जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद और काज़ियुल क़ुज़्ज़ात फ़िल हिंद की पैदाइश 1943 ईस्वी 1362 हिजरी को बरेली के मोहल्ला सौदागरान में आला हज़रत के पोते मुफस्सिर आज़म मुफ्ती इब्राहिम रज़ा खान जिलानी मियाँ के घर हुई। आपका ख़ानदान अफ़गानिस्तानी कबीलाए भड़ूस से ताल्लुक़ रखता है। आपका नाम मोहम्मद इस्माइल रज़ा खान उर्फ़ मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अज़हरी था। दुनिया भर में आप ताजुश शरिया के नाम से मशहूर हुए। अपने शख्सियत को इल्म के उस गहरे समंदर में डुबो दिया था आपने, जहाँ से बेशकीमती इल्मी मोती हासिल कर लिए थे। बचपन से ही आप बड़े फ़क़ीह और ज़हीन और तमाम खूबियों के मालिक के अलावा मुफ्ती, आलिम, फाजिल, हाफिज़, कारी, शायर, मुहद्दिस, मुसन्निफ़ यानी जिसे राइटर लेखक कहा जाता है, मुहक्किफ़, मुफ़क्किर थे। तकरीबन 40 से ज़्यादा उलूम और फ़नून पर महारत हासिल थी। हिंदी होने के बावजूद अरबी ज़ुबान के बेहतरीन माहिर थे। इसके अलावा उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, मलयालम ज़ुबानों के जानकार भी थे। दुनिया भर में मसलक आला हज़रत के प्रचार प्रसार में इन ज़ुबान यानी इस भाषा ने आपकी बड़ी मदद की। शुरुआती तालीम बरेली में आला हज़रत के ज़रिए जो कायम किया गया था मदरसा मंज़र-ए इस्लाम से हासिल करने के बाद आपने 1963 ईस्वी में इस्लामिक जगत की सबसे बड़ी अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र तशरीफ़ ले गए। यहाँ मुसलसल लगातार
साल तक तालीम हासिल कर 1966 में वापस बरेली तशरीफ लाए। 1966 में आपने पहला फतवा लिखा जो 50 साल तक जारी रहा। मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी के 1100 साल के इतिहास में चंद लोगों को फ़ख्र अजहर अवार्ड दिए गए, उनमें से एक आप थे जिनको दिया गया। साथ ही साथ मैं बता दूं, जॉर्डन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने दुनिया के 500 प्रभावशाली व्यक्तियों में आपको 22वां स्थान दिया। आपने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पाया वो सिर्फ इश्क़ रसूल और शरीयत मतहरा पर सख्ती से अमल करके ही पाया। आपका निकाह नवंबर 1968 में अल्लामा हसनैन रज़ा खान साहब की साहिबजादी से हुआ। आपके एक साहिबजादे मुफ्ती असजद रज़ा खान कादरी के अलावा 5 साहिबजादियाँ यानी बेटियां हैं। 1982 में मरकज़ी दारुल इफ्ता कायम किया। इसके अलावा मथुरा पर स्थित जामिअतुर रज़ा जो आपके द्वारा कायम किया गया, जहां आज भी हज़ारों की तादाद में तालीम हासिल कर रहे तलबा हैं। पहला हज आपने 1983 में किया। इसके अलावा कई उमराह किए। आपको अपने साहिबजादे और सज्जादा नशीन साहिबजादे व जानशीन मुफ्ती असजद रज़ा खान कादरी असजद मियाँ के साथ दुनिया भर के मुसलमानों का इबादत का केंद्र खानकाए काबा में दाखिल होकर इबादत और ज़ियारत का शर्फ हासिल है। आपको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने सिर्फ 19 साल की उम्र में 1962 ईस्वी को तमाम सिलसिलों की खिलाफत और इजाज़त से नवाजा। इसके अलावा हुजूर कुतुबे मदीना, हुजूर बुरहान मिल्लत, हुजूर सैयदुल उलमा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर एहसानुल उलमा वगैरह से इजाज़त और खिलाफत हासिल की। ताजुल शरिया के सैकड़ों की तादाद में खुलफा हैं, जिनमें अरबी खुलफा की तादाद 50 से अधिक है। पूरी दुनिया में आपके करोड़ों मुरीद हैं। मज़हब और मसलक की खिदमत करते हुए हुजूर ताजुल शरिया 18 जुलाई 2018 ईस्वी वक्त मगरिब ने सूर्यास्त के समय इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आपके आखिरी दीदार के लिए मुल्क हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर के लाखों अक़ीदतमंद बरेली पहुँचे। आपकी आखिरी आरामगाह मोहल्ला सौदागरान स्थित आला हज़रत के मज़ार के बराबर में कायम की गई। आज यानी उन्हीं की आशिक़ रसूल और आपने पेशवा को 5वें उर्स के मुबारक मौके पर दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन खराज पेश करने बरेली की सरजमी पर पहुँच गए हैं बहुत सारे लोग। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे उर्स का जो मंज़र है, ख़ास तौर से यहाँ का जो मथुरा पर में जो देख रहे हैं आप, वाकई देखने के लायक है। यहाँ ये आप सीधी बरेली दर्पण से जो तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। हमारी भी कोशिश यही है कि पूरे उर्स 2 रोज़ा उर्स में जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पर तादाद में कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे उलेमा इकराम आए हुए हैं, वो खिताब कर रहे हैं। उन तक हमको पहुँचने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी करने पर सख्त मनाही है। और इस वीडियोग्राफी करने की वजह से जिस तरह से हम पहुँचा रहे हैं आपको, हमारा मकसद यही है कि वो बहुत सारे लोग जो हुजूर ताजुल शरिया के उर्स में तशरीफ़ नहीं ला पाए, जो शिरकत नहीं कर पाए, उन तक जो है यहाँ की तस्वीरें यहाँ का मंजर दिखा पाएँ, ताकि वो कम से कम नहीं आए तो उन्हें इस बात का मलाल ना हो कि वहाँ यहाँ उर्स में शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जैसे रात गहराती जाएगी, यहाँ का मंजर और भी ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत होता जाएगा। लोग जो है कसीर तादाद में आते जाएंगे। इसी तरह से उलमा इकराम का आना भी लगातार जारी रहेगा और ये कल तक इसी तरह से जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, जो ज़ायरीन हैं, वो यहाँ पर उलमा इकराम जो खिताब कर रहे हैं उनको सुन रहे हैं। इस तरह से यहाँ की तस्वीर जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, वहाँ तस्वीर बदलती जा रही है। यहाँ पर आप देखिए अभी भी जो है किस तरह से जो ज़ायरीन हैं, उलमा इकराम जो खिताब कर रहे हैं उनको किस तरह से जो है ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये वो आस्ताना है। यहाँ से जो पैगाम जो है हमें
ہمیشہ دنیا کے لیے جاتا ہے، ہندوستان کی ترقی کے لیے جاتا ہے، دنیاوی ترقی کے لیے جاتا ہے، امن و امان کے لیے جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے خاص طور سے جو اسلامک دینی باتیں ہیں ان کا بھی اسی اسٹیج سے بہت ساری چیزیں جو ہے یہیں سے ہی جو ہے عام عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ علماء اکرام یہاں خطاب کر رہے ہیں، اور جس طرح سے جو ہے یہاں پر سننے والے جو ہے آڈینس جسے کہا جاتا ہے، یہاں پر کھانے وغیرہ کا معقول انتظام کیا گیا ہے، جگہ جگہ لنگر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے وہ چائے کا ہو، شربت کا ہو، اس طرح سے کسی طرح سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس بات کا معقول دھیان رکھا گیا ہے۔ اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ہیں یہاں پر لگاتار، کیونکہ ہم آپ کو یہاں کا منظر، یہاں کی تصویریں دکھانے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم آپ تک جو ہے یہ جو عرس کا 2 روزہ عرس کا اہتمام ہوتا ہے، بریلی کی سڑکیں پوری طرح سے کہا جائے کہ بھری بھی ہوتی ہیں۔ کل کا منظر یہاں کا دیکھنے کے لائق ہوگا، پوری بریلی مانو جو ہے حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والوں کی، اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں کی یہاں پر جو ہے سڑکوں پر سے لے کر کے اس طرح سے جس طرح سے نظر آتے ہیں اور قل شریف میں شرکت کرنے آتے ہیں، وہ بھی منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ خاص طور سے پولیس ایڈمنسٹریشن کی بات کریں ہم، یا پھر اور سبھی شہر کے لوگ ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کا بہت سہیوگ رہتا ہے۔ پولیس کا بھی جو ہے ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا بڑے پروگرام میں جو ہے اس کو میں سبھی طرح کی سرکشا ویوستھا کو قائم رکھنا، ساتھ ہی ساتھ ٹریفک کو بھی جو ہے کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، لوگوں کو جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، اس کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ یہاں کے جوش کی ابتدا ہوئی ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو پرچم کشائی کا پورا منظر دکھایا، پرچم کشائی ہم نے پوری دکھائی، ہم درگاہ تک پہنچے، ہم نے پرچم کشائی کے بارے میں بھی جانا، جس طرح سے آپ نے دیکھا سیلانی سے پرچم آیا، ایک شہباز سے پرچم آیا، اور ایک تیسری جگہ سے پرچم آیا، اعظم نگر سے پرچم آیا، اور سبھی جو ہے اسی پرچم کو درگاہ پر جو ہے لایا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی عرس کا جو ہے عرس کی ابتدا ہو گئی۔ جہاں تک عرس کے اختتام کی بات کروں تو کل یعنی 27 تاریخ کو شام کو 7:14 پر حضور تاج الشریعہ کے قل شریف کا اہتمام کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ اس عرس کا اختتام ہو جائے گا۔ لیکن آج کی جو رات ہے، منظر ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ پھر میں بتا دوں، جیسے جیسے رات گہراتی جاتی ہے، بھیڑ کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، یا کہے حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ صرف بریلی سے نہیں بلکہ الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے ہیں، ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، ہندوستان کے الگ الگ شہروں اور گاؤں سے لوگ آتے ہیں، اور یہ سبھی لوگ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں وہ ایک جگہ کے نہیں ہیں، الگ الگ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو تو ذمہ داری دی گئی ہے۔ آپ کیا کوئی والنٹیئر ہیں؟ کیا ہیں؟ ہاں والنٹیئر۔ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ آپ کی صاحب یہاں پبلک کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کوئی جارین کو دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کھانا بھی ملے اور کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اور بہت بڑھیا انتظام ہے۔ سلمان حسن صاحب نے بہت اچھا پروگرام کر رکھا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، جتنے بھی پردیسی آدمی ہیں، جی، ہمارا کام یہ کھانا کھلانا، انہیں عزت سے رکھنا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت خوب۔ دیکھیے یہ حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں، بزرگ ہیں، دیکھیے، لیکن ایز اے والنٹیئر یہ کام کر رہے ہیں، جو مہمان آئے ہیں ان کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے، ان کو کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور جتنے بھی والنٹیئرس ہیں ان کے اس طرح سے، آپ بھی والنٹیئر ہو، جتنے بھی ہیں سب کو کارڈ دیے گئے ہیں، اور اس کارڈ کے بنا آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی ذمہ داریاں بھی ہیں، جس طرح سے پولیس ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اس طرح سے عرس کے جو انتظامیہ ہیں ان کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ان سب کو جو ہے والنٹیئرس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور یہ ذمہ داری کل تک نبھائیں گے، بلکہ کل 7:14 پر جب قل شریف کا اہتمام ہو جائے گا، اس کا اختتام ہو جائے گا، اس کے بعد بھی یہاں پر بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کی بھی ذمہ داری یہ سبھی لوگ اٹھائیں گے۔ تو مدرسہ اپنے آپ میں
दुनिया भर में इसका परचम लहराता है। ये जिस तरह की चीज़ें हैं अपने आप में भी वाकई देखने के लायक होती है कि यहाँ का उर्स जब जब हमने दिखाया है, कल भी हम इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। ऐसा मंजर होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के चाहने वालों का वो जज्बा होता है जो देखने के लायक होता है। आज भी वही जज्बा नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।